Hello everyone, welcome to my channel Creative Ishita. So before seeing the video, please like, share, subscribe and hit the bell icon for latest update. तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया। तो ये हमारी पार्ट 3 है, ये लास्ट वीडियो है हमारी। फर्स्ट और सेकंड जो है वो मैं आई बटन में प्रोवाइड कर दूँगी। The economic environment in India consists of various macro level factors related to the means of production and distribution of wealth which impact on business and industries। तो मतलब इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर कुछ जो है फैक्टर्स होते हैं जो प्रोडक्शन को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर in the form of mixed economy which can recognize role of both public and private sector, economic policy of the government including industrial, non monetary and fiscal policies। इकोनॉमिक प्लानिंग तो मतलब ये सारे जो है हमें वो दे रखे हैं कि गवर्नमेंट के अंदर क्या क्या पॉलिसीज़ होती है या कोई भी फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक प्लानिंग इंक्लूडेड 5 years प्लान, एनुअल बजट एंड सो ऑन। इकोनॉमिक इंडाइसेस लाइक नेशनल इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम रेट, ग्रोथ ऑफ GNP, ठीक है, ये GDP होगा आई थिंक सो, ग्रोथ ऑफ GDP आप इसको कर लेना, ठीक है, GDP, पर कैपिटा इनकम, डिस्पोजल पर कैपिटा इनकम, ठीक है। तो मतलब ये सारे हमें दे रखे हैं कि क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे प्रोडक्शन को छेड़ते हैं। बिजनेस एंटरप्राइज इन इंडिया डू रियलाइज द इम्पॉर्टेंस एंड इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑन देयर वर्किंग्स। ऑलमोस्ट ऑल एनुअल कंपनीज रिपोर्ट प्रेजेंटेड बाय the chairperson devote considerable attention to general economic environment prevailing in the country and an assessment of impact on their companies. The economic environment of the business has been steadily changing mainly due to government policies। तो मतलब जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की वजह से जो बिज़नेस का जो इन्वायरमेंट है वो बहुत जल्दी चेंज कर रहा है। The Indian economy was mainly agriculture and rural in characteristics. About 70% of working population was employed in agriculture. About 85% of population was living in villages। मतलब तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये सारे अफेक्ट कर रहे हैं। Production was carried out using irrational low productivity technology, communicable diseases were widespread, mortality rates were high, there was no good public health system। In order to solve economic problem of a country, government took several steps including control of state of certain industries। तो मतलब गवर्नमेंट ने ये सारे स्टेप्स लिए वो हमें बताया हुआ है कि उन्होंने इनिशिएट करा, मतलब उन्होंने स्टार्ट करा रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ टू रेस स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग। तो इकोनॉमिक ग्रोथ उन्होंने रेस करी ताकि पीपल का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो इंक्रीज़ होए। अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि जो पीपल को काम धंधा नहीं मिल रहा उनको कम करे, पॉवर्टी को जो है कम करे, मतलब गरीबी को कम करे, और वो सेल्फ रिलायंट बने, मतलब कि खुद सेल्फ सफिशिएंट बने, और सेटअप करे स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस विद एम्फोसिस ऑन हैवी एंड बेसिक इंडस्ट्रीज, रिड्यूस इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ, adopt socialistic pattern of development based on equality and prevent exploitation of man by man। In accordance with the economic planning, the government gave a lead role to the public sector for infrastructure industries, whereas private sector was broadly given the responsibility of developing consumers good industries। At the same time, the government imposed several restriction, regulation and control on working of private sector। तो मतलब गवर्नमेंट ने जो है मतलब प्राइवेट सेक्टर को एक टाइप से छेड़ने लगी क्या 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 उसके अंदर वर्किंग चल रही है। इंडियाज एक्सपीरियंस विद इकोनॉमिक प्लानिंग हैज़ डिलीवर्ड mixed results। In 1991, the economy faced a serious foreign exchange crisis, high government deficit, and rising trends of price despite bumper crops। As a part of economic reforms, the government of India announced a new industrial policy in July 1991। तो ये सारी पॉलिसीज़ हमें बताई हुई कि जो गवर्नमेंट ने द गवर्नमेंट रिड्यूस द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज अंडर कंपल्सरी लाइसेंस टू 6, मतलब 6 इंडस्ट्रीज होनी चाहिए एक टाइप से, और सारी नहीं होनी चाहिए। मैनी ऑफ द इंडस्ट्रीज रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर अंडर द अर्लियर पॉलिसी वर डी रिजर्व्ड। द रोल ऑफ द पब्लिक सेक्टर वॉज लिमिटेड ओनली टू 4 इंडस्ट्रीज ऑफ द स्ट्रैटेजीज important। Disinvestment was carried out in case of many public sector industrial enterprises। Policy towards foreign capital was liberalized। The share of foreign equity participated was increased and many in activities। 100% FDI जो है वो परमिटेड हो गई। ऑटोमेटिक परमिशन वॉज नाउ ग्रांटेड फॉर टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट विद फॉरेन कंपनीज। फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन वॉज सेटअप टू प्रमोट एंड चैनलाइज फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। एप्रोप्रिएट मेजर वर टेकन टू रिमूव ऑब्स्टिकल, मतलब रुकावट मतलब रोकने के लिए बहुत सारे मेजर्स लिए गए, ठीक है। अंडर लार्ज इंडस्ट्रियल हाउसेज स्मॉल स्केल सेक्टर वॉज एश्योर्ड ऑल हेल्प एंड अकॉर्डेंस ड्यू रिकग्नाइजेशन, ठीक है, जितना भी चाहिए उनको हमने रिकग्नाइज करा। इन एसेंस दिस पॉलिसी हैज़ सॉट टू लिबरलाइज इंडस्ट्री फ्रॉम
शैकल्स ऑफ लाइसेंसिंग सिस्टम, मतलब लिबरलाइजेशन, मतलब प्राइवेटाइजेशन, मतलब इन सबको जो रोकने के लिए इन्होंने ये सारे स्टेप्स लिए। अब हमको डीप में बताया, जैसे लिबरलाइजेशन क्या है, ठीक है। तो लिबरलाइजेशन क्या है? द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स दैट वर इंट्रोड्यूस्ड वर एम्ड at liberalizing the Indian business and industry for all unnecessary control and restriction। तो मतलब ऐसे इकोनॉमिक रिफॉर्म जो है वो ऐसे, इनका एम क्या था कि जो इंडियन बिजनेस और इंडस्ट्री को उनको अननेसेसरी कंट्रोल और रिस्ट्रिक्शन से हम लोग रोकेंगे, बाहर निकालेंगे। दे सिग्नल्ड द एंड ऑफ द लाइसेंस परमिट क्योटा, ठीक है। राज लिबरलाइजेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री हैज़ टेकन प्लेस, मतलब एक एग्जांपल दे रखा है, जो राज लिबरलाइजेशन है इंडिया इंडस्ट्री का, उसने क्या क्या मतलब वो लाइसेंस लिया। अबॉलिशिंग लाइसेंस रिक्वायरमेंट इन मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज एक्सेप्ट शॉर्टलिस्ट, मतलब कुछ को छोड़ के उन्होंने सब पे जो है लाइसेंस रिक्वायरमेंट छोड़ दिया। The freedom in deciding the scale of the business activities, no restrictions on expansion or contraction of the business environment, मतलब freedom दे दी कि कुछ भी कर सकते हैं। Removal of restrictions on the movement of goods and services, मतलब कि पहले restrictions थी, जैसे goods जब देते थे तो restrictions थी, लेकिन अब उन्होंने सब हटा दी। Freedom in fixing the prices of the goods services, तो मतलब कितना भी प्राइस रखो goods services का, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। Reduce in tax rates, lifting of unnecessary control of the country, simplifying procedures for import and exports and making it easier to attract foreign capital and technology in India। अब बात करते हैं प्राइवेटाइजेशन की। The new set of economic reforms aimed at giving greater role to the private sector in the nation building process and reduced रोल टू पब्लिक सेक्टर, मतलब कि जो एक नया इकोनॉमिक रिफॉर्म है जो मतलब ग्रेटर रोल देता है प्राइवेट सेक्टर को दैन कम्पेयर टू द पब्लिक सेक्टर। This was reverse of the development strategy pursued so far by Indian planners. To achieve this, government redefined the role of the public sector in new industrial policy at 1991। उन्होंने अडॉप्ट करी पॉलिसी ऑफ द प्लान डिसइन्वेस्टमेंट्स ऑफ द पब्लिक सेक्टर, और उन्होंने डिसाइड करा कि हम रेफर करें लॉस मेकिंग और सिक एंटरप्राइजेस टू द बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल और फाइनेंशियल रिकन्स्ट्रक्शंस को। जो टर्म इन्वेस्टमेंट है वो इसलिए यूज़ करें ताकि हम ट्रांसफ़र करें पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज को प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस में। इन्होंने रिजल्ट का डाइल्यूशन ऑफ द स्टेक ऑफ द गवर्नमेंट इन पब्लिक इंटरप्राइजेस। इफ़ देयर इज डाइल्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट ओनरशिप बियॉन्ड 51% वुड रिजल्ट इन ट्रांसफर द ओनरशिप, मतलब अगर 51% से ज़्यादा हुआ तो वो गवर्नमेंट की कंपनी कहलाई जाएगी। ग्लोबलाइजेशन मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस इकोनॉमिक और वर्ल्ड लीडिंग टूवर्ड्स एमर्जेंस ऑफ कोहेसिव ग्लोबल इकोनॉमी। Till 1991, the Government of India has followed policy of strictly regulating imports in values and volume terms. These regulations were with respect to license of imports, tariff restriction, quantitative restrictions. The new economic reforms aimed at trade liberalization were directed towards import liberalization, export promotion through rationalization of tariff structure and reforms with respect to foreign exchange so that the country do not remain isolated from rest of the world. Globalization involves an increased level of interaction and independence amongst the various nations of the global economy। तो मतलब हमें बोला गया कि जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो इन्वॉल्व करती है इंक्रीज लेवल ऑफ इंटरेक्शन और इंडिपेंडेंस वेरियस नेशंस के बीच। जो फिजिकल जोग्राफिकल गैप है या पॉलिटिकल बाउंड्रीज है वो नो लॉन्गर रिमेन करती है, बैरियर मतलब बैरियर नहीं बची है सब बिजनेस एंटरप्राइजेस के लिए, ताकि वो मार्केट में सर्व करें। दिस हैज़ बीन मेड पॉसिबल बाय रैपिड एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, मतलब ये सब किसकी वजह से हुआ है? टेक्नोलॉजी के रैपिड एडवांसमेंट की वजह से। लिबरल ट्रेड पॉलिसीज थ्रू पॉलिसी ऑफ 1991 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मूव द कंट्री टू दिस ग्लोबलाइजेशन पैटर्न। अब हम बात करते हैं डीमोनेटाइजेशन की, उसके बाद हमारा चैप्टर फिनिश है। डीमोनेटाइजेशन का मतलब क्या है? डीमोनेटाइजेशन का मतलब है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेड एन अनाउंसमेंट on 8 November with profound implication for the Indian economy. The two largest demonetization notes, rupees 500 and 1000, were demonetized with the immediate effect, ceasing to legal tender except for few specialized purpose such as paying utility bills, यानी कि satisfaction में, जैसे कि हमने कोई खाना खाया तो हम उसके बिल्स पे करें। This lead to 80% of the money in circulated invalid. The people of India has to deposit the invalid currency in the bank, which came along with the restriction placed on cash withdrawals. In other words, restrictions were placed on convertibility of domestic materials and bank deposits. The aim of demonetization was to curb corruption, मतलब एम क्या था demonetization का कि हम corruption को कम करें, ठीक है, counterfeiting and the use of high denomination
denomination notes for illegal activity, and especially the accumulation of black money generated by the income has not been declared to tax authority. तो इसके फीचर्स क्या क्या है? जो डीमोनेटाइजेशन है उसको हम व्यू करते हैं एज अ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर्स. जो कैश होल्डिंग अराइज है वो डिक्लेयर्ड होता है इनकम में, वो रेडिली डिपॉजिट होता है बैंक में और एक्सचेंज होता है न्यू नोट से. बट दोज विद द ब्लैक मनी हैड टू डिक्लेयर दैट अनअकाउंटेड वेल्थ एंड पे टैक्सेस एट अ पेनाल्टी रेट. में जिसके पास ये सब है तो वो पेनाल्टी रेट भरेगा. Demonetization is also enterprised as the shift on the part of the government, indicating that tax evasion will no longer be tolerated or accepted. Demonetization also led to tax administration channelizing saving into formal finance system through much of the cash that has been deposited in the banking system is bound to be withdrawal. मतलब कि जितना हमने करा ऐसा नहीं कि हम मतलब कितना भी निकाल सकते, नहीं, हमारे पास एक लिमिट होनी चाहिए. But some of the new deposit schemes offered by the bank will continue to provide base loan at lower interest rate. Another feature of demonetization is to create less cash or cash light economy, that is channeling more saving through forming financial system and improving tax compliance. Through there are arguments against this. Digital transaction requires use of, तो हमें ये बोला कि अब डिजिटल ट्रांजैक्शन भी होने लगी है, ठीक है, जैसे कि सेल फोन से और फॉर कस्टमर्स और पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स फॉर मर्चेंट्स, ठीक है, विच विल ओनली वर्क इट इन द इंटरनेट कनेक्टिविटी. मतलब ये सब तभी पॉसिबल है जब हम इंटरनेट कनेक्टिविटी के अंदर करेंगे. On the contrary, these disadvantages are counterbalanced by an understanding that is held by people in informal economy, thereby increasing financial saving and tax evasion. तो हमारी चैप्टर ख़त्म है. तो ये डिजिटलाइजेशन है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बट आप पढ़ लेना, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. तो विद दिस हमारा चैप्टर ख़त्म होता है. ये इम्पैक्ट है, ठीक है, कि मतलब मैं आपको बता देती हूँ जैसे कि मनी और इंटरेस्ट रेट से क्या होगा. डिक्लाइन इन कैश ट्रांजैक्शन, बैंक डिपॉजिट इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है, इंक्रीज़ होता है फाइनेंशियल सेविंग्स में. अगर प्राइवेट वेल्थ होगा तो डिक्लाइन कर देगा कुछ हाई मोनेटाइज नोट्स में जो कि रिटर्न नहीं हुए थे. पब्लिक सेक्टर वेल्थ जो है वो उसमें कोई इफेक्ट नहीं आएगा. डिजिटलाइजेशन होगा तो उसमें न्यू यूज़र्स आएंगे, जैसे कि रूपी होगा, ठीक है, ये सारी इंक्रीज़ हो जाएंगे. रियल एस्टेट होगा तो प्राइस डिक्लाइन हो जाएंगे, कम हो जाएंगी. टैक्स कलेक्शन होगा तो क्या होगा, उसे डिस्क्लोजर इंक्रीज़ हो जाएंगे. तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब. एंड जो पार्ट 1 और पार्ट 2 है वो मैं इसका आई बटन में प्रोवाइड कर दूँगी. टिल देन टेक केयर एंड बाय.